Hello dear friends, good morning, Jai Shri Krishna and myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel AIM Education. So dear students, today our topic is what is resonance energy and what is the relation between resonance energy and stability of any compounds. And next point is how to define the stability order of different resonating structures, right? So we start the first point, and that is the resonance energy. My dear friends, suppose we use the example of benzene. It means the molecular formula of benzene is C6H6 and the structural formula is there are 6 carbons are connected with each other by double bond which are present in a conjugation with each other, and there are 6 hydrogens are connected with carbon of all the carbon of benzene ring. Ready? And each and every carbons are sp2 hybridized, but we have another electronic resonating structure for benzene ring, and that is C6H6, and there are 3 double bonds are present in conjugation and 6 hydrogens are present on each and every carbon. It means each carbon of benzene ring possesses 1 hydrogen. This is the structure of benzene A and this is the structure of benzene B. Both of these structures are the structure of benzene, electronic structure of benzene, and both of these structures are known as resonating structure of benzene, and we can write the intermediate resonating structure of benzene, and that is the structure of benzene C. You can write that structure of benzene by this way. We can indicate the delocalization of pi electron by this way. And this structure of resonating structure of benzene is given by Auguste Kekule. Ready? We already discussed about this topic in our resonance topic. So this is the intermediate resonating structure. But today we are going to discuss about the resonance energy. So you can see there are 3 double bonds are present in benzene ring. Ready? So suppose I have cyclohexene. Suppose I have cyclohexene in which 1 double bond is present. And there are 1 hydrogens are connected with the carbon of this cyclohexene which have double bond and sp2 hybridization. Ready? So both of these carbons have sp2 hybridization and 1 double bond is present. So we can write here sp2 hybrid carbon. And now when we add the hydrogen molecule by breaking the pi bond, so the addition of hydrogen now plus H2 gas, it means hydrogen atom. 2 hydrogen atoms are joined with each other and form H2 molecule. And when we add the hydrogen in this cyclohexene by breaking the pi bond, then one hydrogen atom will connect with these carbons which having sp2 hybridization and convert into sp3 hybridized compound. So you get the final product, and that is cyclohexane. This is cyclohexene and this is cyclohexane. And this reaction in which we add the hydrogen molecule in this cyclohexene by breaking 1 pi bond, this process is known as hydrogenation. Addition of hydrogen is known as hydrogenation. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल थे यहां पे. अभी क्या होगा, जो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया गया हुआ है यहाँ पे, वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे
और ये हमारा बन गया साइक्लोहेक्सेन. It is saturated hydrocarbon, cyclic hydrocarbon, and the carbon which having double bond sp2 hybridization after hydrogenation, it is converting. They are converting into sp3 hybridized saturated carbons. Okay. So during this process, during this addition reaction, some quantity of heat evolved during the reaction. ये reaction जब हो रही होगी तब थोड़ी बहुत हीट यहां से रिलीज हो जाएगी. Some quantity of heat evolved during this reaction, and that is plus 119.66 kilojoule per mole. So this is the exothermic reaction. This reaction is exothermic reaction. Exothermic reaction means some quantity of heat is evolved during the reaction. ये reaction के दौरान थोड़ी बहुत heat यहाँ से release हो जाएगी. ठीक है. तो जब आप 1 मोलेक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन को हाइड्रोजिनेशन करते हो, मतलब हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन. इट मींस साइक्लोहेक्सीन गिव साइक्लोहेक्सेन आफ्टर हाइड्रोजिनेशन एंड इवॉल्व 119.66 किलोजूल पर मोल एनर्जी. So theoretically we can assume that there are 3 double bonds are present in benzene ring. So theoretically we can calculate the hydrogenation energy. This energy is known as hydrogenation energy or hydrogenation enthalpy. इतनी एनर्जी यहां से रिलीज हो जाएगी. ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. मगर अब हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन रिंग का. तो आप देख सकते हो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है. देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन इन बेंजीन रिंग. सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी ऑफ और हाइड्रोजिनेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन रिंग, सो यू कैन सी देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग. सो वी हैव टू ऐड 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल. आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन एटम, इट मींस 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको ऐड करना होगा. तो यहां पे आप 3 बॉन्ड तोड़ने वाले हो बच्चों, तो आप क्या करोगे? 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करोगे. ठीक है. तो ड्यूरिंग दिस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस हाइड्रोजिनेशन एडिशन प्रोसेस, we'll get cyclohexane also. Like this hydrogenation of cyclohexane, 1 molecule of H2 gas add in the cyclohexane and we get cyclohexane. Similarly, when we add 3 moles of hydrogen in benzene, then by breaking of 3 pi bonds we will get cyclohexane. But during this process we can assume that the energy which is evolved during this process, and that is 119.66 into 3. Theoretically we can assume this energy. अब थियोरिटिकली इतना कैलकुलेशन करके सोच सकते हो कि अगर आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हो तो 119.66 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी रिलीज होती है. तो फिर बेंजीन में यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है. आप 3 मोलेक्यूल H2 डालोगे तो एडिशन के दौरान 119.66 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 पाई बॉन्ड तोड़े. ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए और वो होगी हमारी 358.99 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी यहां पे रिलीज होनी चाहिए. दिस इज द थियोरिटिकल वैल्यू, थियोरिटिकल हाइड्रोजिनेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन रिंग. थियोरिटिकली हाइड्रोजिनेशन एनर्जी. ठीक है, बट अब तो ये हमने सिर्फ थियोरेटिकली सोचा, अभी हमने प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं. तब क्या करेंगे? हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, 3 मोलेक्यूल H2 के डाल देंगे और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है. सो लेट्स वी सी द हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन रिंग प्रैक्टिकली. सो अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं प्रैक्टिकली हाइड्रोजिनेशन energy of benzene.
So there are 3 bonds are present in benzene ring, and when we add 3 hydrogen molecule during this process, then we'll get cyclohexane plus 208.36 kilojoule per mole. This is the practically, it means true value of hydrogenation enthalpy of benzene ring, practically value. Sorry. So you can see, you can get the 208.36 kilojoule per mole hydrogenation energy of benzene ring. मतलब आप देख सकते हो कि जब आप थियोरेटिकली सोच रहे हो कि अगर आप साइक्लोहेक्सिन का एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको मिलेगी 119.66 किलोजूल पर मोल जितनी एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। मगर अगर आप पाई बॉन्ड के 3 बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, थियोरेटिकली आप दिमाग लगा के सोच भी सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। 119.66 इंटू 3 इज इक्वल टू 358.99, ठीक है। मगर जब आप प्रैक्टिकल करके देखते हो तब आपको ऐसा ही लगेगा कि इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी, मगर जब आप प्रैक्टिकल करके देखते हो तो आपको मिलती है सिर्फ 208.36 किलोजूल पर मोल। इट मींस दिस इज द हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन रिंग एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू। तब आपको दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हमें सिर्फ इतनी ही एनर्जी मिलती है तो बाकी की एनर्जी कहां गई? क्योंकि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर फॉर्म विच कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती और कभी नई एनर्जी फॉर्म भी नहीं होती, बनती भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अभी आप थियोरेटिकली देखोगे तो आपको एनर्जी बेंजीन की हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी मिलनी चाहिए 358.99, मगर आपको कितनी मिल रही है तो आप देख सकते हो आपको मिल रही है सिर्फ 208.36। तो बाकी की एनर्जी कहां गई? तो वो एनर्जी एक्चुअली जितनी मिलनी चाहिए मगर उससे कम मिल रही है, तो बाकी की जो एनर्जी है, जो यहां पे जितनी भी कम मिल रही है, द लेस प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी in this practical value which is used in the resonance process. It means जो बाकी की एनर्जी है, जो कम मिल रही है, तो बाकी की एनर्जी है वो ये बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड्स को डीलोकेलाइज करने में यूज हो जाती है। मतलब के 358.99 प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल एनर्जी यहां पे आप लिख सकते हो। थियोरिटिकली theoretical energy is 358.99 and practical value of energy is 208.36. Then the subtraction value is 150.63. 150.63 kilojoule per mole, and this energy is known as resonance energy. This is the resonating energy of benzene ring. क्योंकि इतनी एनर्जी यूज होती होगी बेंजीन के ये 3 पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज होने के लिए। सो व्हेन दिस पाई बॉन्ड्स आर डीलोकेलाइज on their adjacent carbons and converting into structure B, and when these pi bonds of structure B are delocalizing into structure A, during this process energy during
resonating process, the energy is used is known as रेजोनेंस एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी ये सभी पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज होने में यूज होती होगी, उतनी एनर्जी हमें प्रैक्टिकली कम मिलेगी, क्योंकि यही बेंजीन की जो एनर्जी होगी वो पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करने में यूज हो जाती होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बेंजीन की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और ये एनर्जी जो पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज होने में, मतलब रेजोनेंस होने में यूज हो रही है, उसे बोलते हैं हम रेजोनेटिंग एनर्जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी? देन द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू theoretical value of energy minus practical value of energy. Theoretical value of energy minus practical value of energy, it is known as resonance energy of compound. Resonance energy of any compound. Ready? तो अभी ये रेजोनेंस एनर्जी को यूज करके आप कोई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई ऐसा इंसान है जिसकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसमें बहुत एनर्जी है, बहुत ही पावर है, वो इंसान कभी स्टेबल नहीं रह सकता। वो यहां से वहां से यहां घूमेगा, बहुत ही हाइपर एक्टिव और रिएक्टिव होगा। ठीक है, और जिसकी एनर्जी बहुत कम है वो खुद लेजी हो जाएगा, वो बहुत ही रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, एक ही जगह पे बैठा रहेगा। एक एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, तो जिस किसी भी इंटरनल एनर्जी, किसी की इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत रिएक्टिव होगा, और जिस किसी की भी इंटरनल एनर्जी कम होगी वो कम रिएक्टिव होगा, मतलब स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ any compound is inversely proportional to the energy of that compound. किसी भी कंपाउंड की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी भी कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से द स्टेबिलिटी of compound is inversely proportional to internal energy of compound और energy of compound। अभी क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड की प्रैक्टिकल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, जितनी होनी चाहिए वो यहां पे आपको मिल रही है। सो द प्रैक्टिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जितनी कम होगी उतनी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपली मैं आपको बताता हूं कि अगर थियोरेटिकल वैल्यू इतनी आनी चाहिए, मगर बेंजीन की जो प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखते हो हाइड्रोजनेशन के लिए वो होगी हमारी 208.36, मतलब 208.36। रेडी? तो थियोरेटिकली वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू कम हो गई। अभी सपोज कि ये 208 को छोड़ दो, सिर्फ 100 किलो जूल मिलती है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई, वो हम बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे कोई भी कंपाउंड की प्रैक्टिकल वैल्यू, एनर्जी की प्रैक्टिकल वैल्यू जितनी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम हो गई, थियोरेटिकल वैल्यू ज्यादा है मगर प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो सब्सट्रैक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी और वो हमारी रेजोनेटिंग एनर्जी है। सो ऑन दैट बेस वी कैन से if the resonance energy is higher, then that compound can show the maximum resonating structures, and due to the resonating structures the energy of that specific compound decrease, lower energy which has lower energy due to resonance, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रेजोनेंस में ही यूज हो जाएगी, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो जितनी भी कंपाउंड की एनर्जी कम होगी उतना वो स्टेबल होगा, उतनी उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, सो
the stability of compound is increased with increasing in the resonating energy. It means the stability of compound is inversely proportional to internal energy of compound and directly proportional to the resonance energy. ये बात आपको दिमाग पे बिठानी चाहिए, ये आपको दिमाग में रखनी होगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। The stability of any compound is directly proportional to the resonating energy of that specific compound. क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, उतनी एनर्जी उसमें रेजोनेंस के दौरान यूज होती जाएगी, तो खुद की एनर्जी जितनी कम हो जाएगी उतना वो स्टेबल होगा। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, अभी आप यहां से वहां, वहां से यहां से वहां घूम रहे हो, मतलब कि आप सपोज रेजोनेंस दिखाते हो ये फॉर्म से वो फॉर्म में, वो फॉर्म से ये फॉर्म में, मतलब एक से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूअसली आप कन्वर्ट होते हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी खुद की एनर्जी यूज होगी, और जितना आप मूवमेंट ज्यादा करते हो, जितने समय तक आप मूवमेंट ज्यादा करते हो, उतनी आपको थकान महसूस होगी, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी उतनी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप थक हार के बैठ जाओगे, मतलब आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी थकने के बाद। और उसके बाद आपको कोई बोलते कि चल मेरे साथ घूमने आ जा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं यार मूड नहीं है, थक चुका हूं, एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो जितनी भी एनर्जी कम उतनी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, और उतनी एनर्जी कम क्यों हो गई, क्योंकि उसका रेजोनेंस बढ़ गया, उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी बढ़ गई। सो यू हैव टू remember this point. So we complete this point. This is the resonance energy. Now let's we discuss about the specific different resonating structures and how to define the stability order of that resonating structures.